Hi friends, Rotary District 3141 is one of the premier Rotary districts around the world, doing amazing work for the community. Rotary Year 2021 is a vision year, and District Governor Sunil Mehra at the helm of affairs, wherein many new initiatives have been introduced to create a difference and make Rotary seen. There is a Giver's Gain project to generate funds out of the waste, which will be used to fund Rotary Foundation's various humanitarian projects. Under the Over is another initiative to beautify Mumbai and create utility spaces below all flyovers. Lots of efforts are also going on towards literacy, malnutrition, health, sanitation, and other verticals. Friends, WizBiz Talks is one more initiative, a novel concept in Vision Year, with an ideology to support Rotarians to support Rotary. WizBiz Talks is also to create more bonding and proximity amongst Rotarians on personal, Rotary, and professional fronts. In these interviews, we speak to visionary Rotarians who, by virtue of their selfless work towards the community, have reached important decisive positions, and their actions today will help Rotary to serve more, to make a difference in the community. I am Dr. Manish Motwani, a bariatric surgeon, that is a weight loss surgeon, and also the Chief Coordinator for Rotary District 3141 in the year 2021. Friends, we have a very special guest today. A very special guest who's a very special and close friend. A friend who's a Rotarian with 2 decades of Rotary experience. A Rotarian from one of the premier Rotary clubs of Mumbai, that is Rotary Club of Palghar. Yes, friends, none other than Rotarian Rafiq Lulania. He's into business of restaurants and poultry integration. A BCom LLB. He has been awarded multiple awards from the club and district and has had lots of recognitions at the district level too, and been a head of and part of various avenues at district and club level. He is an integral member of the Vision Core team in capacity of district secretary. Friends. Now, who's a core team member? Friends, a core team member is a small closed unit team of the district governor. This team is the team which has been meeting since 1.5 years before the year starts. And they are the ones who have formed, executed, conceptualized all the projects for the year. And friends, Rafiq Lulania is a strong man from Palghar. He is one of the very strong forces and one of the backbones of District 3141 in the Vision Year 2021. Friends, he is keenly interested in uplifting tribals and underprivileged youngsters for higher education. Eklavya Raila for tribal students is his USP. Very hardworking, efficient, organized, diligent worker. Very dynamic and proactive in approach. With this small introduction, friends, I present before you my dear friend Rafiq Lulania. Very good evening to Manish ji and all, and thank you so much for this brief introduction. Assalamu alaikum and very good evening to all. रफीक जी, आपके बारे में कहना पड़े तो मैं और 2 पेज कह सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था हमें इंटरव्यू शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, नहीं तो आपके बारे में तो मैं 2 पेजेस भी बोल सकता हूँ। ये आपका बड़प्पन है मनीष जी, थैंक यू सो मच। रफीक भाई, हम रोटरी में साथ में काम करते हैं, हम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं जो आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। See, you are a visionary core team member. A core team member is one of the most important members in the entire district team. You have lots and lots of responsibilities on your head, और आपने इतना मेहनत किया है जिससे today we are seeing that despite COVID हमारे projects इतने successfully हो रहे हैं। तो you are a part and parcel of every victory or every good thing that has happened to the district till date in District 3141 in the Vision Year 2021. मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, पहले तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। So would you mind telling us something about you as a person and your family? या मनीष भाई, मेरा जन्म पालघर में ही हुआ है और मैं 9 साल का था तो मैंने अपनी मदर को लॉस कर दिया, और 18 साल का था तो मेरे फादर को मैंने लॉस कर दिया। इस तरह से अंकल और ग्रैंडफादर को मिल के मुझे उन्होंने पढ़ाया, और 1984 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बॉम्बे लॉ कॉलेज गया, वहां पे लॉ 2 साल कंप्लीट किया, और फिर मेरे फैमिली बिजनेस, ट्रेडिंग का बिजनेस था, उसमें मैं लग गया।
788 में बिजनेस मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज मुझे रिस्पांस नहीं मिला, और मैंने अपना एक पोट्री का बिजनेस स्टार्ट किया हमारे एक पार्टनर मिलिंद पाटिल के साथ। और 1990 में जो है वो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 94 में हमने पार्टनरशिप छोड़ी और बिल्कुल 1000 बर्ड के हिसाब से मैंने जो है ना पोल्ट्री चालू की थी, और 2000 तक मैंने 1 लाख बर्ड के अपने खुद के फार्म हाउस बना लिए। मनोर के अंदर हमने एक जगह ली जिसके अंदर हमने शेड्स बनाए, हैचरी बनाई, फीड मिल बनाई, और 1 लाख बर्ड का फार्मिंग हमने स्टार्ट कर दिया। एंड धीरे धीरे हम लोग वो बिजनेस में आगे बढ़ते गए। या रफीक भाई, ये हो गया आपके बिजनेस के बारे में और आपका करियर अभी तक कैसे रहा है। लेकिन हमें आपके फैमिली लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए, आपके बच्चों के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में। आई हर्ड शी इज आल्सो रोटेरियन, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम में भी हैं, और आपके बच्चे दे आर सो वेल एजुकेटेड एंड दे आर डूइंग सो वेल। हमें उनके बारे में भी कुछ जानना है। मेरी वाइफ का नाम शमीम है। 1994 में वो मेरी लाइफ में आई, और वहीं पे मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है। 1994 से 2004 के बीच में हम लोग ने बहुत ही अप्स एंड डाउन देखे, और हर वक्त वो मेरे साथ रही। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा कि 2004 में हमारा पोल्ट्री इंडस्ट्री में बर्ड फ्लू आया था, एंड आई लॉस्ट 2 करोड़ रुपीस। उस वक्त समीम का पूरा मुझे साथ रहा, और उसने 4 साल के अंदर जो है ना हमको प्रॉब्लम में से बाहर निकाला। शमीम इज BA MS डॉक्टर है, बहुत ही डिग्निफाइड फैमिली से है, और इनरविल क्लब ऑफ पालघर की जो है ना वो पास्ट प्रेसिडेंट है। उसने यहाँ पे इनरविल सेंटर भी बनाया है, गार्डन भी बनाया है। और मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के का नाम है अमन, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा किया, एंड नाउ ही हैज गॉन फॉर द MBA का उसका एग्जाम हो गया IIM कोझिकोड से, एंड नाउ ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन पिरामल ग्रुप। मेरी एक बच्ची है, माजिन उसका नाम है, और वो भी अभी BA 3rd ईयर में स्टडी कर रही है। दोनों भी बच्चे और मेरे मिसेस, ये हम लोग सोशली माइंडेड है, और रोटरी में सब जुड़े हुए हैं। अमन रोटरी में जुड़ा हुआ है, शमीम इनरविल में जुड़ी हुई है, मैं रोटरी में जुड़ा हुआ। हम लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। So this is a Rotarian family, Rotary in your blood. रफीक भाई, आप जो काम करते हैं that is absolutely noteworthy. आपके बारे में बहुत सुना है। वो एरिया में अगर हमें कुछ करना हो या कुछ सोचना भी हो तो हमें मालूम है there is only one person whom we can speak to, and that is रफीक भाई। रफीक भाई, you are a great host too. दो मैंने सुना बहुत है, लेकिन अभी तक आया नहीं हूँ, लेकिन हमने सुना है कि you are a lovely host, और ये साल तो हम आपके यहाँ पे 100% आने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रफीक भाई, ये हो गया आपके रोटरी के बारे में। आपने हमें आपके काम के बारे में कुछ तो बताया, बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आवर कंसेप्ट हियर इज दैट वी वांट रोटेरियंस हु are friends together, working in Rotary together, they should also start doing their businesses together. क्यों ना हो? अगर आज आपको रोटरी से कुछ मिलता है तो मुझे जितना रोटेरियंस के बारे में मालूम है, हम उससे ज्यादा रोटरी को देंगे और हम ज्यादा कम्युनिटी को हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सी क्लोज निट कम्युनिटी होनी चाहिए। और ये सुनील मेहरा जी के थॉट्स है, और ही वाज द वन हु हैड स्टार्टेड इन मुंबई चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रोटरी मींस बिजनेस, RMB उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी भी वो ये चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। विज टॉक्स का भी वही मतलब है कि हमें चाहिए कि सब रोटेरियंस अपने बिजनेसेस में भी साथ में जुड़े, जैसे कम्युनिटी और बढ़े। तो क्या आप मुझे आपके बिजनेस के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, जिससे आप किसी और से भी जुड़ के बिजनेस कर सकें, या एक दूसरे में किसी को भी इससे बेनिफिट हो सकता है? बिल्कुल मनीष जी, मेरे दो बिजनेस है, एक तो पोल्ट्री फार्मिंग है और एक रेस्टोरेंट है, और ये दोनों भी बिजनेस ऐसे है कि जितने करो उतने कम है। सी, आजकल चेन ऑफ बिजनेस और चेन ऑफ रेस्टोरेंट की भी बहुत कंसेप्ट है। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस आल्सो। सो इफ एनीवन वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, सो वी कैन fully guide them. Like that, poultry farming is also very wide business. There is no competition like that. Anyone can start the poultry farming. It is a very profitable and good business. I am in that business last 30 years. I know each and everything. We can guide and uplift the Rotarians also. Fantastic. रफीक भाई, ये तो एक बहुत बढ़िया बात आपने बता दी। तो anyone who is looking at even expanding his source of business either can be guided by Rafiq bhai, or there can be a joint venture coming up. Anything is possible because आज Rotarians में एक दूसरे में इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना एथिकल रिलेशन है, तो कोई भी एक रोटेरियन दूसरे रोटेरियन के साथ मिलके काम करने में 10 बार सोचेगा नहीं। It is so much clear at heart.
So this is excellent opportunity for many. रफीक भाई आपने बहुत बढ़िया बात कह दी है, एंड आज जो ये सुनने वाले लोग हैं वो सिर्फ आपके इस साल के प्रेसिडेंट्स नहीं हैं, ये सारे के सारे 5800 रोटेरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3141 सुनेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाहर के रोटरी क्लब के बहुत सारे मेंबर्स सुनने वाले हैं, उसको छोड़ के नॉन रोटेरियंस भी सुनने वाले हैं। तो आज आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। आज जो आपके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो ऐसे होने चाहिए जिससे रोटरी में बॉन्डिंग बढ़े, रोटरी में रिलेशंस बढ़े, रोटरी में लोग रोटरी की तरफ खींचे आए, एंड बहुत सारे नॉन रोटेरियंस कहें कि अगर ऐसे लोग और ऐसे हीरे रोटरी में है तो हमें भी रोटरी ज्वाइन करना चाहिए। रफीक भाई, ये मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं है कि देयर विल बी more and more people wanting to come to Rotary rather than we thinking of membership growth. There will be people waiting for us that please take us in Rotary fold, and this is the day that really we are looking for. रफीक भाई, इसके साथ साथ एक और चीज ये थी कि ये साल आपका पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और आप ये पोजीशन की वैल्यू जानते हैं। यू आर द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फॉर क्लब्स, मतलब आपके साथ 12 क्लब्स हैं जिनके आप कर्ता धर्ता हैं, जिनके साथ आपकी जिम्मेदारी है कि उनको गाइड करे। वो भले कितने भी बड़े क्लब्स हो, कितने भी एक्सपीरियंस क्लब हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट पहली बार बन रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको गाइड करें, ट्रेन करें, उनको साथ रहें, उनका दोस्त बने, उनका और उनको एक सही रास्ता दिखा के उनको ऐसे मंजिल पे पहुंचाएं जहां पे आज के दिन तक कोई क्लब ना पहुंच सकी हो, जिससे ना सिर्फ वो रोटरी क्लब को फायदा होगा, रोटरी को फायदा होगा, और वो जो कम्युनिटी जिनको वो सर्व करते हैं उनको भी फायदा होगा। तो आपके ये साल के लिए प्लान्स क्या है वो मुझे थोड़ा बताइए, और कोविड के रहते रहते आप अपने सारे प्लान्स कैसे पूरे करेंगे ये भी हमें बताइए। मनीष जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब ये दूंगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील मेहरा जी है, उसने जो कोर टीम, आप जैसे चीफ कोऑर्डिनेटर है, और हमारे जो पूरी कोर टीम के जो मेंबर्स है, उसने इस तरह से हमको ट्रेन किया है, हमारे क्लब्स को ट्रेन किया है कि हमारे लिए ये काम जो करना वो बहुत ईजी हो गया है। आज की तारीख के अंदर हमारे जो क्लब्स है, वो क्लब्स को जो ट्रेनिंग दी है, प्रिपेयर्ड जो हमारा हुआ है, जिसमें आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है, उससे लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली है, और हमारे बिल्कुल वो क्लब को हम पूरा ट्रेन कर रहे हैं। आज ये कोविड के सिचुएशन के अंदर भी हमारे जूम के ऊपर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा पालघर एरिया तो करीब काफी मतलब अभी ओपन हो गया है। तो हम लोग ने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट प्लान किए हैं यहाँ पे। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये है कि आज जितने भी बिजनेसेस कम हो गए हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लेबर अपने गांव चले गया, तो हमारा सबसे पहला जो है वो ही प्रोजेक्ट है कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे रोजगार मेला करें जिसके अंदर फैक्ट्री ओनर्स और जो वर्कर्स, हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे लोकल कम्युनिटी को। हमने अभी यहाँ पे एक लेटर भी मतलब पब्लिश किया हुआ है कि जिसको अभी लोकल कम्युनिटी के अंदर जो लोग काम नहीं कर रहे वो लोग आगे आए, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो हम लोग वो रोजगार मेला वगैरह हम लोग करके काफी अपॉर्चुनिटीज जॉब की जो है वो करेंगे। सेकेंड कि अभी हमारे एरिया जो है वो पालघर थोड़ा रूरल में आता है, डायलिसिस सेंटर यहाँ पे सिर्फ एक ही है रोटरी का, और हर एक को डायलिसिस के लिए जो है ना बॉम्बे तक आना पड़ता था। हमने इमरजेंसी ये सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर 1 महीना पहले मनोर हाईवे के ऊपर एक नया डायलिसिस सेंटर चालू कर दिया, जिसमें 2 मशीन लग चुके हैं और 3 मशीन भी जो है ना हमको कमिट हो चुके हैं। विद इन 15 डेज और मंथ वी विल स्टार्ट विद द 3। तो एक बड़ा डायलिसिस सेंटर हम लोग वहां पे शुरू करेंगे। सेकेंड, पीपीई किट से लेके मास्क से लेके काफी चीजें हम लोग, और गवर्नमेंट जैसे कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। आज पुलिस इतना हमको सर्विस दे रही है, तो उनको जो मेंटल स्ट्रेस किस तरह से कम होना मांगता है, उनकी सेफ्टी के लिए जूम के ऊपर जो हम लोग उनके लिए एक सेमिनार करने जा रहे हैं। एसपी साहब से भी हमारी मीटिंग हो गई, और करीब करीब उन्होंने बताया कि 1000 ऑफिसर जो है ना वो सेमिनार के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का ये काम है, और बाकी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी, जैसे कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जो है ना सेफ्टी के लिए काफी चीजें हमने सोची है। हमने ये साल हमारा जो विजन ईयर है उसने हमको एक बात सिखाई है, हमारा जो आरआई का थीम भी है कि रोटरी ओपन्स द अपॉर्चुनिटीज। तो हमने जो है ना वो कोविड में जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट कोविड सिचुएशन से भी ज्यादा कोविड के अंदर जो है ना वो रोटरी को काम करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, एंड वी विल डेफिनेटली इनकैश दिस अपॉर्चुनिटी। माय ऑल द 12 क्लब आर रेडी टू सर्व द कम्युनिटी इन द विजनरी ईयर मोर देन बेटर देन इन द कोविड सिचुएशन। फैंटास्टिक रफीक भाई, जो आप बात कर रहे हो, इतना दिल से बात आ रही है आपकी, मैं देख सक रहा हूँ कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन है। यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, यू आर so good at putting your thoughts in front of everyone.
I myself have got motivated by listening to you, और ये मुझे सुनील को आज बताना ही पड़ेगा कि अगर ये लेवल का मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन है हमारे कोर टीम में, तो वो दिन दूर नहीं that 2021 year is going to be the best year for District 3141, and 2021 year में Rotary 3141 will be #1 district in the entire world. Definitely. रफीक भाई, आपने जो आज कहा, जो प्रोजेक्ट्स आपने कहे और जिस हिसाब से आप सबको लेके आ रहे हो साथ में, ये तो एक बात है दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रफीक भाई इज अ मेंटोर, रफीक भाई इज अ गाइड, एंड रफीक भाई आज अपने रहते रहते वो मनोर में एक और क्लब भी चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मनोर हाईवे। तो ये वीडियो सुनने में ऐसे कोई लोग होंगे जो मनोर के वहां पे रहते हैं, तो रफीक भाई को डेफिनेटली मिले, रफीक भाई से बात करें, और इनका नंबर ढूंढने को आपको तकलीफ नहीं होगी, वो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रफीक भाई, थैंक यू सो मच, आप जितना कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके आज आप हमारे टॉक शो में आए। आई एम रियली ब्लेस्ड बाय दैट। उसके बाद में जो आपने अपने थॉट्स शेयर किए, वो थॉट्स इतने क्लियर और ट्रांसपेरेंट है कि इसके बाद में कोई भी रोटेरियन को इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि हमारा पाथ क्या है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। आप पालघर से हैं, लेकिन आज के दिन में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्लेसेस इज पालघर एरिया, और आज के दिन में हम लोग कितने सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम लोग मेन बॉम्बे साइड में नहीं कर सक रहे हैं, हम आपके थ्रू पालघर में करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड केयर, एंड वी आर श्योर विथ यू अलोंग वी आर गोइंग टू मेक रोटरी 3141 रॉक। थैंक यू सो मच मनीष जी। और मैं आखिरी में सिर्फ हर एक इंसान को, हर एक रोटेरियन को एक छोटा सा 2 हिंदी पंक्तियों में मैसेज देना चाहूंगा कि हर एक इंसान का एक ध्येय होता है। हमारा भी यही ध्येय है, हमारे रोटरी के अंदर एक ही ध्येय है, और वो 2 पंक्तियां यही है कि न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, मुझे उस दिन का इंतजार है कि ये जिंदगी के कुछ लम्हे किसी के काम आ जाए। थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सो मच रफीक।